Praise the Lord to all my brothers. सभी को जय मसीह की। I want to thank to God because He gave us this opportunity in my life. मैं परमेश्वर का शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया आज वचन बोलने का। Before start the sermon, I want to pray to God and ask to His guidance. शुरू करने से पहले मैं परमेश्वर पिता के साथ प्रे करना चाहता हूँ, उनकी गाइडेंस, उनकी सहायता लेना चाहता हूँ। Shall we pray to God? हम प्रार्थना करते हैं। Our dear Heavenly Father, we thank you for this blessed time. Thank you for giving this opportunity in my life. Now we are going to start the sermon. I come to you today and asking for guidance. God, please give me wisdom and knowledge and give me this sermon the clarity, because I don't know how to explain this word and how to introduce in among the people of your people, and I don't know. Please give me, and I am very afraid, but you said I am stand with you. You don't fear. That's why I am standing here. God, please give me clarity, and they can understand very well your word and what do you want to say us. Please give me, and I speak through your Holy Spirit. Please guide me and lead me. I need your guidance, God. I धन्यवाद करते हैं। Please forgive when I made a mistake. Please forgive us and lead us. I pray in Jesus' mighty name. Do this pray. Amen. Praise the Lord. Once again, I praise the Lord to all my brothers. फिर से सभी को जय मसीह की। I want to thank God. मैं परमेश्वर का शुक्रिया करता हूँ because I am standing in front of you. क्योंकि मैं उनके आगे खड़ा हूँ। Because of grace of God. क्योंकि उनकी दया से I am not able to stand before you. मैं उनके आपके सामने खड़ा हो पाया हूँ। But God made me stand before you. परमेश्वर ने मुझे आप सभी के सामने खड़ा होने का मौका दिया है। I am not able to preach a word of God. नहीं तो मैं परमेश्वर का वचन नहीं बोल पाता। But God made me preach a word of God. पर परमेश्वर ने मुझे उनके वचनों का बोलने का मौका दिया है। So shall we? Today I want to share a word of God from the book of Malachi. मैं आज परमेश्वर पिता के शब्दों को, वचनों को बोलना चाहता हूँ मलाकी के किताब से। Once again, I greet you all in the mighty name of Lord and Savior Jesus Christ, who created everything in the world. अब मैं फिर से आप सभी का वो धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का वो करता हूँ कि आप सब आए परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए। First, shall we open the Bible and the book of Malachi? अब हम मलाकी के पुस्तक पे आएंगे and we will see the first introduction of this book. और हम इस बुक के इंट्रोडक्शन को देखेंगे पहले। And first we will see the context. और पहले हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट, because this is very important in our life. ये हमारे जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। Without don't know about the context, we cannot preach. क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के और बिना कॉन्टेक्स्ट को जाने हम प्रचार नहीं कर सकते। Then we will first see about the Malachi. हम देखते हैं मलाकी के बारे में पहले। Do you know about what is the meaning of Malachi? क्या आपको पता है कि मलाकी का मतलब क्या है? The meaning of Malachi, the name my messenger. मलाकी के शब्द का अर्थ है मेरा मैसेंजर। Like that, and Malachi is a prophet. मलाकी एक प्रोफेट भविष्यवक्ता है। And he is a prophecy in among the people of Israel. उसने प्रोफेसी किया इज़राइल के लोगों के लिए। And we can see the Malachi prophesied during the time of the exact period between the after that return from the Babylon, exact rebuilding. जब उसने प्रोफेसी किया जब एग्जाइल के वक्त पे बेबीलोन जब बन रहा था। This Malachi wrote the time of the Nehemiah. ये मलाकी लिखा गया है नहमिया के वक्त पर लिखा गया है। You can see this book written in last in the Old Testament. ये बुक पुराने नियम का आखिरी किताब है। And after we will see the why Malachi wrote this book
of Malachi. अब हम देखेंगे कि मलाकी ने ये किताब क्यों लिखा है And why need in our life? और ये किताब, ये पुस्तक की हमारी जिंदगी में क्यों जरूरत है। First point we will see. हम पहला पॉइंट देखेंगे Remind the people God still love them. कि लोगों को रिमाइंड करने के लिए कि परमेश्वर हमें चाहता है, Because God has loved the people of Israel. क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल को लोगों को प्यार किया है। This one point. ये पहला पॉइंट है। The second point, the priests and leaders not doing their duty the right way. और दूसरा पॉइंट है कि उन प्रीस्ट और लीडर्स के लिए जो अपने ड्यूटी कर्तव्य को सही तरीके से नहीं कर रहे, They are doing according to their own, वो अपने कर्तव्य को अपने ही तरीके से कर रहे हैं, but they did not do according to the word of God. पर वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा नहीं वो कर रहे हैं, वो परमेश्वर वो अपने ही द्वारा कर रहे हैं। After that we can see the 3 point. फिर हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, Call the people that turn back him and live the right way. लोगों को पीछे मुड़ने के लिए और सही जिंदगी जीने के लिए, एक सच्चा जिंदगी जीने के लिए कि God is calling. परमेश्वर हमें बुला रहा है। Then God says, "Come to me, परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, correct your mistake." अपनी गलतियों को सुधारो। And after that we can see the fourth point. अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट, Tell them the judgment is coming, days come. उनको कहना कि न्यायों का दिन आ रहा है। You must prepare and you must correct your mistake and your like it. हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, बनाना चाहिए कि और अपने जो भी गलतियां हैं उन्हें सुधारना चाहिए, अपनी गलतियों को ठीक करना चाहिए। We will see the 5 point, the promise that someone will come to prepare the way for the Lord. ये एक वादा है कि कोई आ रहा है परमेश्वर का रास्ता बनाने के लिए, प्रिपेयर द वे ऑफ लॉर्ड। This is 5 points in this book. ये 5 जो पॉइंट है इस किताब पे लिखा गया है। And we will see all these five points is wrote in this book. हम देख सकते हैं कि ये 5 पॉइंट इस किताब पर लिखा गया है। This is main point. This is main point in the book of Malachi. ये जरूरी, बहुत जरूरी पॉइंट है मलाकी के किताब पे। And we will see the purpose. अब हम देखेंगे कि पर्पस इसका क्यों जरूरत है इस बुक का। God says, "Wake up and come to me and correct your way." परमेश्वर कहता है कि आओ मेरे पास आओ और अपनी जो भी गलतियां है उसे ठीक करो। Prepare yourself and for the coming days and future time. अपने आप को ऐसा बनाओ कि आने वाले दिन के लिए और आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार रखो। We show this purpose. हम देखते हैं ये जरूरत को। And after that we will point out how can say God is speaking in this whole book of Malachi. हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से ये पूरी पुस्तक में बातें कर रहा है। How can say the whole book written by spoke by God. हम देखेंगे कि ये पूरा किताब परमेश्वर ने ही कहा गया है। उनके How can say? हम कैसे बोलेंगे, कैसे कह सकते हैं। We can see the chapter Malachi chapter 1 verse 1. हम पहले देखेंगे मलाकी के 1 पर। And there wrote the word of the Lord to Israel by Malachi. ये परमेश्वर के वचनों को लिखा गया है इज़राइल के लोगों को मलाकी के द्वारा। The first verse is clear that this spoke by Malachi. ये पहला वचन ये क्लियर करता है कि ये वचन बोला गया है मलाकी के द्वारा। And the Christian believe that this book written by Malachi. और मसीह लोग ये मानते हैं कि ये किताब लिखा गया है मलाकी के द्वारा। And prophets speak message directly from God. और प्रोफेट परमेश्वर भविष्यवक्ता अपने परमेश्वर के संदेश को उनके जरिए बोलते हैं। And after that we will see
how many times wrote the sentence, says the Lord of hosts. हम फिर देखेंगे कितने बार लिखा गया है सेंटेंस यहोवा क्या कहता है? यहोवा क्या कहेगा। How many times wrote this sentence? कितने बार लिखा गया है ये सेंटेंस। Then we will see. ये हम देखेंगे। When you will read the whole book, the book of Malachi, and you will find the 20 times according to ESV Bible. जब हम मलाकी की पूरी पुस्तक को पढ़ेंगे हम देखेंगे कि ये लिखा गया है 20 बार लिखा गया है ये सेंटेंस। And other translation we will see the 80 times. और अदर दूसरे ट्रांसलेशन में है उसमें हम देखेंगे कि ये 18 बार लिखा गया है। Means मतलब this whole book written by Malachi, but through the God spoke to Malachi. Malachi received his life and he interpretation the people of Israel. मतलब ये किताब पूरी किताब लिखा गया है मलाकी के द्वारा प्रभु की सहायता से इजराइल के लोगों के लिए प्रभु ने सहायता किया और मलाकी के द्वारा ये लिखा गया है। When we see about the book and we can understand the many questions God asked to people of Israel. जब हम देखेंगे प्रभु के बारे में ये पता चलता है कि प्रभु ने बहुत से सवाल पूछे हैं लोगों को, इस्राएल के लोगों को। Do you know how many questions God asked to people? क्या आपको पता है प्रभु ने कितने प्रश्न पूछे हैं? The main question God asked to the people of Israel 11 questions. बहुत जरूरी क्वेश्चन जो है प्रभु ने इजराइल के लोगों को पूछा है वो है 11। There are 11 questions. 11 questions. And how many questions the people of Israel asked to the God? और कितने प्रश्न हैं जो इजराइल के लोगों ने परमेश्वर को पूछा है? Do you know? क्या आप जानते हैं? We will see the people of Israel asked to the God 8 questions. हम देखते हैं कि इजराइल के लोगों ने प्रभु को 8 सवाल पूछे हैं। Then we will see when I read this book, whole book, the book of Malachi, then I understand something fighting between people of Israel and God. जब मैंने ये पूरी किताब का अध्ययन किया तब मैंने ये समझा कि इसमें कुछ लड़ाई हो रहा है पीपल के इजराइल के लोगों के बीच और प्रभु के बीच। Fight means this is not acting in but spiritual things. ये लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि हथियार से हो रहा है किसी चीज से, ये मतलब आत्मिक रूप से लड़ाई हो रहा है। Then we will see the God question to people and people question to God. हम देखते हैं कि गॉड प्रभु लोगों को सवाल पूछ रहे हैं और लोग प्रभु को सवाल पूछ रहे हैं। Then we will see the first Malachi chapter 1 verse 1. अब हम देखेंगे मलाकी के अध्याय का 1 verse 1। We will find the first question God asked to the people. अब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने पहला प्रश्न पूछा लोगों को। Then we will someone read. कोई आप में से कोई रीड करना पढ़ना। The word of the Lord is the Israel through Malachi. Chapter 1 verse 2. यहोवा यूं कहता है, मैंने तुझसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तुमने किस बात में हमसे प्रेम किया है। Then we will first know this God asked to people one question. अब हम पहले जानेंगे कि लोगों को प्रभु ने एक प्रश्न पूछा है। Then God says, I have loved you. प्रभु बोलता है कि मैंने तुम लोगों से प्यार किया है। But the people of Israel says, how have you loved us? पर इजराइल के लोगों में बोल रहा है कि तुमने कैसा प्यार किया है हमें। Because they are forget the God's love. क्योंकि वो भूल चुके हैं परमेश्वर के प्रेम को। They are forget the God's mercy. और उन्होंने वो सब भूल चुके हैं प्रभु के दया को। They are everything forget. वो सब कुछ भूल गए हैं। They are doing according to their own. वो अपने ही तरीके से जी रहे हैं। That's why God spoke to Malachi and Malachi received from God and Malachi interpretation among the people of Israel. इसीलिए परमेश्वर ने मलाकी को बात किया और मलाकी ने लोगों को प्रभु के जरिए लोगों के इजराइल के लोगों को बातें किया।
when we go, when Malachi go for sharing the word of God, जब मलाकी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने को जाता था, what God gave him. परमेश्वर ने उसे क्या दिया? Said one prophecies. एक भविष्यवक्ता है, And he said, and God said to you must go and said to people of Israel. कि तुम्हें इज़राइल के लोगों के पास जाना होगा और कहना होगा, What I said. क्या मैंने कहा? Only for what I said, these things said to people. जो मैंने कहा उन चीजों को इज़राइल के लोगों को बताओ। Then Malachi go to the people of Israel फिर मलाकी इज़राइल के लोगों के पास गया and said, और कहा, God loved you. परमेश्वर ने तुमसे प्रेम करता है, But you say, how have you loved us? पर तुम पूछते हो परमेश्वर हमें कैसे प्यार करता है। Then God, then they cannot understand पर उन्हें समझ नहीं आया उस वक्त, because they are doing according to their own. क्योंकि वो अपने ही तरीके से जी रहे थे। Then God gave one example. फिर परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल दिया। Someone read the chapter 1 verse 1. कोई एक का एक पढ़िए। 1 and 2 of the word of the God to Israel by Malachi. and 2 and 3 also. I have loved you, says the Lord, but you say, how have you loved us? And 3 also. Is the Esau brothers, Jacob brothers, declares the Lord, yet I have loved Jacob, but Esau I have hated. I have laid wasted his hill country and left his inheritance to jackals of the desert. We can see the God gave one example अब हम देख सकते हैं परमेश्वर पिता ने एक एग्जाम्पल दिया है for to understand the love of God, कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में, for the understand the word of God. परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए। Then God says, कि परमेश्वर कहता है, is not Esau Jacob's brother, declare the Lord, yet I have loved Jacob, but Esau I have hated. I have laid waste in his country and led his inheritance to jackals of the desert. यहोवा की मानी है, यूसुफ का भाई था तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु ये सब को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी प्रतीक भूमि को जंगल के दिग्रों का स्थान बना दिया है। Then we can see the life of Jacob and Esau. अब हम देख सकते हैं जेकब और ईसो के जिंदगी के बारे में। God loved the Jacob more than Esau परमेश्वर ने जेकब को ईसो से ज्यादा प्यार किया, because Esau they are doing according to their own. क्योंकि ईसो अपने ही तरीके से कर रहा था चीजें, And also Jacob they are doing something wrong, but they are doing according to will of God. पर जेको भी कुछ गलती कर रहा था, पर उसने चीजें परमेश्वर के वचनों के द्वारा किया। And we can see the many things written about Jacob. हम देख सकते हैं कि बहुत सी चीजें जेकब के बारे में लिखा गया है, More than Esau. मोर देन ईसो से भी ज्यादा। That's why like that God loved the people of Israel. उसी तरीके से प्रभु परमेश्वर पिता ने इज़राइल के लोगों से प्रेम किया है। And we can see the New Testament. अब हम नए नियम के पुस्तक में देख सकते हैं Jesus loved the John. यीशु मसीह ने जॉन को प्रेम किया More than the other disciples. अदर डिसाइपल से भी ज्यादा। We can see the like that God loved the people of Israel. उसी तरीके से परमेश्वर पिता ने इज़राइल के लोगों से प्रेम किया। Now here what I have loved you. अब यहाँ देख सकते हैं कि लिखा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। And many Bibles and other translator
I loves you. और बहुत से ट्रांसलेशन में भी लिखा गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। This continuous process. ये एक हमेशा चलने वाला चीज है। Like that, God want to understand the people of Israel. God loved you. इसी तरीके से परमेश्वर इज़राइल के लोगों को समझाना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। After that, we will see and after God has rejected the issue. अब देखेंगे कि परमेश्वर ने यीशु को रिजेक्ट किया है, यीशु को ना अस्वीकार किया। And this passes for the protection of our Israel while Edom was punished. ये बताता है कि इज़राइल के लोगों को फेवर करके उनके जगह को प्रोटेक्ट किया गया है। But Edom was punished. पर एडोम को सजा मिला गया। And after that we will see the chapter 1 verse 4. अब हम देखेंगे चैप्टर 1 का वर्स 4 को। The Edom mighty tried to rebuild, but God says that I will destroy city. एडोम ने वापस बनाने की कोशिश किया, पर परमेश्वर ने कहा कि मैं उसे नष्ट करूंगा उस जगह को। And they will be known the city, the nation sinful. और इस जगह को उसके बाद जाना जाएगा पाप के स्थान के नाम से। They will be called the wicked country. और उस कंट्री को एक पापी देश के नाम से जाना जाएगा उस जगह को। And do you know? क्या आप जानते हैं Why God had the people of the people of Edom? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर क्यों एडोम के लोगों से नफरत करता था? And they are because they are trusted in their own. क्योंकि उन्होंने भरोसा किया अपने ही आप पे। They are trusted their strength. उनके ही ताकत पे, उनके बल पे, not in God. ना कि परमेश्वर पे। उन्होंने अपने आप पे ही भरोसा किया। Do you know where is written about these things? ये कहाँ पर लिखा गया है, आपको पता है? We can see when you read the Obadiah chapter 1 verse 3. ये हम वहाँ देख सकते हैं ओबेदिया 1:3 पर। They are doing according to their own. कि वो उनके ही तरीके से चीजें कर रहे हैं। And first one and second one, they betray and attack the people of Israel. उन्होंने इज़राइल के लोगों को धोखा दिया और उन पे अटैक किया, हमला किया गया। Means their brother. कि उनके अपने ही भाइयों को, The Jacob brother of Esau. जेकब यीशु का भाई है। But they are doing the Esau doing according to their own. कि यीशु अपने ही तरीके से कर रहे हैं, अपने ही मन मर्जी से चीजें कर रहे हैं। That's why God said, इस कारण परमेश्वर ने कहा they will be called the wicked country. कि इस देश को पाप के देश के नाम से जाना जाएगा। After that we will see. अब हम देखेंगे They betray and attack the people of Israel. उन्होंने धोखा दिया और इज़राइल के लोगों पे हमला किया गया। And after that we will see. और इसके बाद हम देखेंगे They rejected when Israel was suffering. उनको नास्वीकार किया गया जब इज़राइल चीज से भुगत रहे थे। We will see about this thing Obadiah chapter 1 verse 12. हम इन चीजों के बारे में जानेंगे ओबदिय्याह की पुस्तक 1:12 पर। You will see. You can read after finish the sermon. आप इस को पढ़ सकते हैं जब हमारा ये सरमन खत्म हो जाएगा। Because there is no time. क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। When Jerusalem was destroyed and they mocked and they laughed and said, good. जब जेरूसलम तबाह हो गया था, उन्होंने ठट्टा उड़ाया, हंसी किया, मजाक किया और कहा कि अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने मजाक उड़ाया। And fourth point, और चौथा पॉइंट है, their hatred has been going on for many years. उनका नफरत बहुत सालों के लिए चल रहा था। We can see about this thing. और इन चीजों के बारे में हम देख सकते हैं। Ezekiel 35 verse 5. एजेकियल 35 के 5 पर हम देख सकते हैं। You can read. आप लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि तू इस्राएलियों
से युग युग की शत्रुता रखता था, और उनकी विपत्ति के समय जब उनके आदम के जन्म का समय पहुंचा, तब उन्हें तलवार से मारने जाने को दे दिया। We will see the people of Edom. They are many years ago hated the people of Israel. हम देखेंगे कि यहाँ पे इस्राएल के लोगों ने बहुत नफरत किया इजराइल के लोगों को। And after that we will see और फिर हम देखेंगे they were helping to enemies वो अपने शत्रु को मदद कर रहे थे, and trapping the refugees. एंड जो शरण लेने आए थे उनको कब्जा करके उनको फंसा रहे थे, And they are not helping to Jacob. और वो लोग खुश नहीं थे जेकब से, They are not helping to the people of Israel. और वो लोग खुश नहीं थे इजराइल के लोगों से। That's why God said, the Edom is was known by wicked country. इस कारण से परमेश्वर ने कहा कि इदोम एक पापी देश के नाम से जाना जाएगा। Then after we will see the chapter 1 verse 5. फिर हम देखेंगे चैप्टर 1 के 5 पर। Can you somebody read? क्या आप में से कोई पढ़ सकता है? All I shall see this, and you shall say, Great is the Lord beyond the border of Israel. And God want to say the people of Israel, परमेश्वर इजराइल के लोगों से कहना चाहता है, if you are not obeying to my commandment, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हो, but you will one day you can understand whole world and whole universe praise me. फिर एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि ये सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड मेरी प्रशंसा करता है। Then you can understand who I am. फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। Then after we will see the chapter 1 verse 6. और फिर हम देखेंगे चैप्टर 1 के 6 पर God asked the question of the priest of Israel. God asked the question the priest of Israel. परमेश्वर ने क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा इजराइल के पंडितों के लिए, Those who doing something in the temple of Israel. जो कुछ चीजें कर रहे थे प्रभु के मंदिर पर, इजराइल के मंदिर पर। Can you somebody read? क्या आप में से कोई पढ़ सकता है? Chapter 1 verse 6. As son honors his father and a servant his master, if then I am a father, where is my honor? And I am a master, where is my fear? Says the Lord of hosts to you, O priest, who disputes my name. But you say, how have we despised your name? पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है? सेना का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बातें पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात से तेरे नाम का अपमान किया है? We can see that they were worshipping to God. हम देखेंगे कि यहाँ पर ये लोग वो लोग प्रभु की प्रशंसा स्तुति कर रहे हैं। They were praising to God. वो परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं। They were praying to God. वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। पर they are doing something wrong. पर वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं। They are when God gave commandment, then they are not doing according to God's commandment. जब परमेश्वर ने आज्ञा दी, पर वो लोग परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा चीजें नहीं कर रहे, but they are worshipping according to their own. वो प्रशंसा स्तुति कर रहे हैं उनके ही तरीके से। That's why God said to them, इसलिए परमेश्वर ने उनसे कहा, I am your father, मैं तुम्हारा पिता हूँ, I am your master, और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। and God says, और परमेश्वर ने कहा, why don't respect me? क्यों तुम मेरी इज्जत नहीं कर रहे? And he tell, फिर उसने कहा, the priest says how can not respect you? फिर वहाँ के पंडित लोगों ने कहा कि कैसे हम कह सकते हैं कि हम आपकी इज्जत नहीं कर रहे? And other priest don't know about these things. लोगों को पता नहीं था कि इन सभी चीजों के बारे में, कि we are doing something wrong. कि वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं। And
what they have done wrong. और उन्होंने क्या गलत किया है। But that God is scolding the priest of Israel. पर परमेश्वर इज़राइल के जो प्रीस्ट थे, जो पंडित थे, उनको डांट रहा है। Then we can understand that this time. इस वक्त हम कुछ ये समझते हैं कि Then we are worshiping to God. हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, We are praying to God. हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, We are praising to God. हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, We are trusting to God. We are trusting to हम God. परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, We are believing to God. हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, But we are not doing according to the word of God. पर हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा चीजों को नहीं करते। Then we are nothing इस कारण हम कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कहलाते। before the Lord. अपने आप को परमेश्वर के लिए रखो, समर्पित करो। In front of the people, in front of the God. We are nothing in front of the God. हम परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है, Because we are worshiping and we are praying and we are praising according to our own. क्योंकि हम परमेश्वर को स्तुति, आराधना, प्रशंसा अपने ही तरीके से करते हैं। When we came and we are praising whole day and whole night and whole years. जब हम प्रार्थना करते हैं पूरे दिन, पूरे रात, पूरे साल भर, But we are not worshiping to according to the word of God. पर हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा स्तुति नहीं करते। Then we are nothing. इस कारण हम कुछ भी नहीं है। Time waste. तो हमारा समय व्यर्थ है, Everything waste. सब कुछ व्यर्थ है। Same thing here God said to people of Israel. यही सेम चीज हम यहाँ देख सकते हैं। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों से कहा है, God gave a commandment, परमेश्वर ने आज्ञा दिया, but they are not doing according to commandment. और वो आज्ञा के द्वारा नहीं कर रहे उन चीजों को। They are worshiping, वो स्तुति कर रहे हैं, but they are not according to will of God. ये परमेश्वर की इच्छा के द्वारा नहीं हो रहा। But they are also like a Pharisee and Sadducee. वो फिलिस्तीन की लोगों की तरह बना। They are doing the Pharisee and Sadducee. Pharisee and Sadducee. वो फिलिस्तीन के द्वारा करे जा रहे हैं। Pharisee and Sadducee. Pharisee. They are doing show himself. वो अपने आप को दिखाने के लिए, मतलब स्तुति कर रहे हैं कि दिखाने के लिए कर रहे हैं, But they are not showing the God. वो परमेश्वर को नहीं दिखा रहे, But they are showing the many people. वो बहुत सारे लोगों को दिखा रहे हैं। They are acting. वो लोग नाटक कर रहे हैं। And God, many people choose for the altar. जब परमेश्वर ने लोगों को चुना था अल्टर संदूक. वाचा के संदूक के लिए, They are something doing in the temple of God. वो कुछ कर रहे थे परमेश्वर के मंदिर पर, But they are also forgetting पर वो भूल गए the love of God. परमेश्वर के प्रेम को। That's why God rebuked all people. इसलिए परमेश्वर ने उन सभी को रिफ्यूज कर दिया। And this but they cannot understand how can disobey word of God. वो समझ नहीं पाए कि उन्होंने कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। But God point out these things. पर परमेश्वर ने इन चीजों को पॉइंट निकाला। And they are giving him God gave one example. परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल दिया। When you will bring God, before many years ago, God said to them, don't bring a blind animal and don't bring a sick animal like that. परमेश्वर ने बहुत साल पहले कहा था कि जो खराब पशु है उनको मत लाना। Don't bring animal for sacrifice unclean. ये जो अनक्लीन है, जो अच्छे नहीं है एनिमल्स, जो इंजर्ड है, उन सभी जानवरों को उनके चराने के लिए चरावे के रूप में मत लाना। But they are bringing for sacrifice the unclean animals. जो वो लोग ला रहे अशुद्ध जानवरों को परमेश्वर को चढ़ाने के लिए। Then God says to, I am your father, but where is my respect?
मैं तुम्हारा पिता हूँ, पर तुम क्यों मेरी इज्जत नहीं कर रहे? परमेश्वर ने ये कहा, Where is my fear? कहाँ है मेरा डर? You are not fearing me, और तुम सब मुझसे नहीं डर रहे हो, but you are doing your own. कि तुम सारी चीजें अपने मन मर्जी से कर रहे हो। And we can see this book and many questions God asked the people of Israel. हम इस किताब में देखते हैं कि बहुत सारा सवाल है जो परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को पूछा गया है। Not for believer, सिर्फ जो विश्वास करते हैं उनके लिए नहीं, not for priest, उनके लिए नहीं, पंडितों के लिए नहीं, but everyone, those who worshiping the God, everyone, God says, God refused them. जो सारे लोगों के लिए जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं उन सारे लोगों को कहा गया है। But now this time, पर इस वक्त many pastors came for preaching. बहुत से पास्टर्स लोग होते हैं जो आते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। They are only for saying the believers. वो लोग विश्वास करने वाले लोगों को कहते हैं। They are refusing they are preaching the believer among before the people. वो प्रीच करते हैं लोगों के सामने है कि, but they are not preach himself. वो उनके द्वारा प्रीच नहीं कर रहे होते। Like that here, उसी तरह हम देख सकते हैं they are preached also forget God's love. कि पंडितों ने भी परमेश्वर का प्रेम को भूल गए हैं, And also leaders. और जो वहाँ के लीडर्स है वो भी भूल गए हैं। Everyone forget God's love. सारे लोग, जितने भी लोग, सब लोग भूल गए हैं परमेश्वर के प्रेम को। That's why God want to remind them. इसलिए परमेश्वर उन्हें याद दिलाना चाहता है I have loved you. कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। But you says how have you loved me? फिर तुम कहते हो कि How have you loved us? कैसे तुम मुझसे प्यार करते हो। Then we will read the chapter 1 verse 9. अब हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे चैप्टर 1 के 9 को। Now plead with God to be gracious to us, which such offering from your hand will He accept you, says the Lord Almighty. We can see these verses. हम यहाँ देखते हैं इस वचनों पे God tells them, परमेश्वर ने उनसे कहा, ask for His mercy. उनसे परमेश्वर से दया को मांगो। This you must put in your mind. God said to Malachi and Malachi said to people of Israel. ये तुम्हें अपने दिमाग पे भरना होगा कि परमेश्वर ने मलाकी को भेजा है इज़राइल के लोगों के लिए। And you don't forget. Men think this. God said to Malachi and Malachi receive his heart and he interprets the people of Israel. जो जरूरी चीज ये है कि परमेश्वर ने मलाकी को चुना और मलाकी को भेजा कि इज़राइल के लोगों को बोलने के लिए। That's why here Malachi said, इसीलिए मलाकी ने यहाँ कहा है, ask for his mercy. उससे दया की उम्मीद रखो, दया को मांगो and correct your mistake. और अपनी गलतियों को सुधारो। And we will see the chapter 1 verse 10. अब हम देखेंगे चैप्टर 1 के 10 पर। Someone stand and read. On that one of you would shut the temple's door, so that you would not light useless fire on the altars. I am not pleased with you, says the Lord Almighty, and I will accept no offering from your hand. Okay, thank you. And here God said, यहाँ परमेश्वर कहता है, they are worshiping, वो स्तुति कर रहे हैं, but fake worship. Fake worship, fake. पर वो दिखावे के लिए कर रहे हैं, नकली पना वाला। Then God anger, फिर परमेश्वर का गुस्सा, and he said, I am not happy. और कहा कि मैं तुम लोगों से खुश नहीं हूँ, Because they are bringing offering and according to their own. वो चढ़ावा ला रहे हैं पर अपने ही तरीके से। That's why God is not happy. इसी कारण से परमेश्वर खुश नहीं है। That's why God remind them इसी कारण से परमेश्वर ने उन्हें याद दिलाया and said, I have loved you. और कहा कि मैं खुश नहीं हूँ, And I have loved you. I have loved you.
I have loved you. और कहा कि मैंने तुम लोगों से प्यार किया है। And after that we will see the chapter 1 verse 12. फिर हम देखेंगे चैप्टर वर्स 1 के 12 11 sorry. 1 के 11। God says that परमेश्वर कहता है even if Israel does not respect me, अगर इज़राइल भी उसकी इज्जत ना करे, the nation will be people everywhere will one day worship him truly and honor his name. दूसरे जगहों पर लोग होंगे जो उसकी प्रशंसा स्तुति महिमा करेंगे एक दिन। You are not respecting me, but many people and many whole world and whole universe are respecting me one day. आज तुम मेरी इज्जत नहीं कर रहे, पर एक दिन पूरा संसार, पूरा ये ब्रह्मांड के लोग मेरी इज्जत करेंगे। They will worship truly. और वो सच्चाई से स्तुति करेंगे। And they are mention my name और वो मेरे नाम को लेंगे and correct their mistake. और अपनी गलतियों को सुधारेंगे। And you must correct your mistake. और तुम लोगों को भी अपनी गलतियों को सही करना होगा। And after that we will see the chapter 1 verse 12. और फिर हम देखते हैं चैप्टर 1 के 12 पर The people are insulting altar of God and sacrifice, but trusting in them and like they don't matter and are not important, like that they act before the Lord. लोग परमेश्वर के अल्टर का मजाक उड़ाया गया है और सेक्रीफाइस को, और जो ऐसा कि बताया गया है कि वो जरूरी ही नहीं है, उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं है, उनको क्या करने की जरूरत है। प्रभु क्या they are acting like that there is no need altar. और वो एक्टिंग कर रहे हैं कि उन्हें अल्टर की कोई जरूरत ही नहीं है। There is no need this thing. और इस चीजों की हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है। They are doing something wrong. वो कुछ चीजें बहुत गलत कर रहे हैं because they are not important the altar of God. कि वो परमेश्वर के अल्टर को एक मान्यता नहीं दे रहे, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। That's why God remind them. कि परमेश्वर ने इस कारण उन्हें याद दिलाया। I help them many times. कि मैंने तुम लोगों को बहुत बार मदद की है। And you are not respecting my name. और पर भी तुम मेरे नाम की इज्जत नहीं कर रहे। And you did not understand the altar of God is important. और तुम लोग नहीं समझ पाए कि प्रभु का अल्टर जो है वो जरूरी है। And God said the priest. परमेश्वर ने कहा पंडितों से, Comprehend that worship is burden. ये जो वर्शिप है तुम्हें एक भार की तरह लग रहा है। And they don't take it seriously. और ये तुम इनको एक जरूरी रूप से नहीं ले रहे, सीरियस नहीं ले रहे। They bad animal and expect God to accept them. और तुम खराब जानवरों को चढ़ाते हो और ये उम्मीद करते हो कि प्रभु उन सारी चीजों को स्वीकारेगा। But I will never accept. परंतु मैं इस चीजों को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। Because you are bringing the unclean animals. क्योंकि तुम अशुद्ध जानवरों को मेरे सामने लेकर आ रहे हो। That's why God remind them. इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें याद दिलाया। Because God already told them, you don't bring unclean animals. परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि अशुद्ध जानवरों को लेकर मत आना, फिर भी वो लेकर आए। And they are saying their mouth. और वो कह रहे हैं अपने शब्द से, he promising to God. परमेश्वर को प्रॉमिस किया। They are promising to give the something good. और वो लोग वचन दे रहे हैं कि हम कुछ अच्छा चीज देंगे भेंट पर, but they are giving us something bad. वो फिर भी खराब चीजें ही दे रहे हैं। That's why God said to them. इसी कारण परमेश्वर ने उनसे कहा। That's why God remind them. इसी कारण उनको परमेश्वर ने याद दिलाया। And that's it. और उन्होंने कहा, Malachi said, मलाकी ने कहा, he is a great king. वो एक महान राजा है। God said, I am a great king. और परमेश्वर ने कहा, मैं एक महान राजा हूँ। Then you should bring a great
great things. तो इसी कारण तुम्हें एक महान बहुत अच्छी चीजें लेकर आना चाहिए। For sacrifice in the altar. वो चढ़ाने के लिए तुम्हें लेकर आना चाहिए अल्टर पर। Then we will see the chapter 2. अब हम आएंगे दूसरे पुस्तक चैप्टर 2 पर। Then God said to the priest, God rebuked the priest of Israel. परमेश्वर ने God rebukes the priest of Israel. परमेश्वर डांटता है इजराइल के लोगों को। And they were supposed to lead and worship and uphold the law, but they failed. पर उन्हें परमेश्वर के जो नियम है उनके द्वारा स्तुति करना चाहिए था। The priest of Israel, they are not able to preach word of God. जो इजराइल के पंडित थे वो परमेश्वर के वचनों को अच्छे से नहीं सुना पा रहे थे। They are also able. पर वो लोग They are also able to preach the word of God. पर वो कर सकते थे, but they are forget. पर वो भूल गए, because they are doing according to their own. क्योंकि वो अपने ही मन मर्जी से चीजें कर रहे हैं। That's why God said, I will fail you. I will remove you. इस कारण से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम लोगों को हटाऊंगा। Their blessing would be turned into the curse due to their unfaithfulness. जो तुम लोगों को जो आशीष मिला गया था अब वो श्राप में बच जाएगा। तुम्हारे जो भरोसा नहीं करके जो मुझमें जो भरोसा नहीं दिखाते हो उस कारण से। That's why God said to them, they are not teaching according to the covenant of God. वो परमेश्वर के वचन के द्वारा जो शिक्षा है उसको नहीं दे रहे थे। When God said to the Moses, जब परमेश्वर ने मोसेस से कहा था, God gave to the Moses a commandment. परमेश्वर ने को मोसेस को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी। But the people of Israel are not obeying word of God. परंतु इजराइल के लोग परमेश्वर के वचनों को नहीं मान रहे। They are not sacrificed according to the covenant of God. वो चढ़ावा नहीं कर रहे परमेश्वर के कहे अनुसार। That's why God will disgrace. इस कारण से उनको प्रभु दया नहीं देगा। The priest just like fifth remove from the sacrifice. उसी तरह जिस तरह से पांचवा चीज सैक्रिफाइस से हटाया गया था, they will be publicly shamed. उन्हें सभी लोगों के सामने लज्जित होना पड़ेगा। They will be removed their position. वो अपने जो स्थान पर इस वक्त है उस स्थान से हटाए जाएंगे। After that we can understand. अब हम इसके बाद हम जानेंगे then we are not doing according to law of God. फिर हम जानेंगे कि हम चीजें नहीं कर रहे परमेश्वर के अनुसार। Then God will remove our position. तब परमेश्वर हमारे भी स्थानों को हटाएगा। Clear says God said to people. इस चीजों को परमेश्वर ने लोगों को कहा। God said to remove your position. I will remove your position. परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे स्थान पर जिस स्थान पर तुम बैठे हो उस स्थान से मैं तुम्हें हटाऊंगा, उस पद से तुम्हें हटाऊंगा। If you want to stand your this position, you will do according to my covenant. अगर तुम इस स्थान पर इस पद पर रहना चाहते हो तो मेरे कहे अनुसार चीजों को करो। We can see that God gave command the people of Israel. हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को कवनेंट वाचा दिया था। He reminded about the covenant. और उन्होंने याद दिलाया कवनेंट के बारे में। They offered the life and peace in the exchange for the reverence and obedience. उन्होंने कहा था कि वो शांति उसके बाद आज्ञाकारी बनकर जिएंगे। God gave command live for peace of life. परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि एक पीस शांति के तरीके से जिंदगी को जीना। Do you know what God gave covenant? क्या आप जानते हैं क्या वाचा परमेश्वर ने दिया था? We can see the Numbers chapter 25 verse 12 to 13. हम देखेंगे गिनती के किताब 25 अध्याय 12 और 13 पर Covenant of the priest with Phinehas.
कि वाचा शांति का फिनियस के साथ God gave the title of Levi. फिर परमेश्वर ने उसे टाइटल दिया। Levi, God gave परमेश्वर ने उन्हें लेवी स्टाइल दिया गया। And these verses show that God gave Levi the covenant of life. और ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने लेवी को वाचा दिया शांति का, उसके बाद जिंदगी का। And God too said to the Levi, और परमेश्वर ने लेवी से कहा, you must worshiping and you must do be faithfully. तुम सभी को स्तुति अपने दिल से और भरोसे से करना चाहिए। You don't forget my word and my commandment. मेरे वचनों को और मेरे आज्ञाओं को मत भूलना। This verses connect with the corrupt and the present days. अब हम इस वचनों को देख सकते हैं जो करप्शन आ गए इस आज के दिन पर। If we are not doing according to word of God, अगर हम परमेश्वर के आज्ञाओं के द्वारा नहीं करते in our church, हमारे जो चर्च है वहाँ पर, in our hearts, हमारे दिल पर, we are not doing the will of God, और हम परमेश्वर के आज्ञाओं के जरिए इच्छा की जरिए नहीं कर रहे। when we will be pastor, when we will be pastor, जब हम कोई आगे जाकर पास्टर बनेंगे, but we must remember that the book of Malachi. हम सभी को मलाकी की किताब के बारे में जानने की और इसे याद रखने की जरूरत है। If we are not doing according to will of God, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के द्वारा नहीं करते, then God will take you us और परमेश्वर हमें उस स्थान से और उस पद से निकालेगा, in our position. हमारे पद से। And we will see the chapter 2 verse. अब हम देखेंगे चैप्टर 2 के 7 पर। Someone stand and read. क्या आप खड़े होकर आप में से कोई पढ़ सकता है इस वचन को 2 के 7 को? क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। Then these verses God said to the priest. ये वचन परमेश्वर ने पंडितों को कहा है, You must live according to will of God. हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। Many people ask to where type you can. बहुत से लोगों ने कहा है कि कैसे Which type tribe can do. He asked about our life. उसने पूछा हमारे जिंदगी के बारे में। And if we are living according to will of God, अगर तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हो, then many people believe in God. तभी परमेश्वर को बहुत सारे लोग मानेंगे, विश्वास करेंगे। If we are not doing according, if you are not living according to will of God, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के द्वारा नहीं जी रहे हैं, और we are worshiping, और हम स्तुति कर रहे हैं, we are praying, और हम प्रार्थना कर रहे हैं, we are praising to God, और हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, but God will never accept. पर परमेश्वर उस चीजों को कभी भी स्वीकारेगा नहीं। I am not saying, और मैं कह रहा हूँ, I am not saying मैं ये नहीं कह रहा according to me, मैं अपने जरिए से नहीं बता रहा, but this book of Malachi says, मैं मलाकी के किताब में जो लिखा गया है मैं वही बता रहा हूँ। and this is not saying Malachi is not saying, ये मलाकी भी नहीं कह रहा, but God said ये परमेश्वर कह रहा है, through the Malachi. मलाकी के द्वारा ये परमेश्वर हम सभी से कह रहा है। That's why इसी कारण we must live according to will of God. हमें परमेश्वर की इच्छा के जरिए जीना जरूरी है। We must ask for God's guidance. हमें परमेश्वर के उसके सहारा की जरूरत है कि उसे पूछना चाहिए How to preach, कि हम कैसे प्रचार कर सकते हैं, how to praise, हाउ टू उसकी कैसे हम प्रशंसा कर सकते हैं, how to lead the people. और हम कैसे लोगों को लीड कर सकते हैं। If we are asked the God's guidance, अगर हम परमेश्वर की सहायता लेंगे, and after that we will worship you,
when we worship to God, और उसके बाद अगर हम परमेश्वर को स्तुति आराधना करेंगे, God accept our worship. फिर परमेश्वर हमारे आराधना को एक्सेप्ट कर स्वीकारेगा, God will listen our voice. फिर परमेश्वर हमारी आवाज को सुनेगा, Then God will accept all things. We are praying, we are worshiping, we are trusting. हमारे विश्वास, हमारे आराधना, हमारे प्रार्थना, इन सारी चीजों को परमेश्वर स्वीकारेगा। There are many people बहुत सारे लोग हैं trusting to God, विश्वास करते हैं प्रभु पर, praying to God, प्रार्थना करते हैं, preaching in front of the people, प्रचार करते हैं लोगों के सामने, but they are not walking according to word of God. परंतु वो लोग नहीं चल रहे परमेश्वर के वचनों के द्वारा। Then we will the coming days we will destroy. और जब आने वाले वक्त पे उनका नाश हो जाएगा। When will Jesus Christ came here? जब यीशु मसीह यहाँ पर आया था। When will God came here? जब परमेश्वर आएगा। जब परमेश्वर आएगा, then we can understand. फिर हमें पता चलेगा why I am living a bad life. क्यों मैंने खराब जिंदगी को जिया। That's why this thing is very need in our life. इसी कारण ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में जरूरी है। Correct our mistakes. हमारी गलतियों को सुधारो before the Lord and ask to God. और परमेश्वर के सामने परमेश्वर से पूछो, Please forgive my mistake. मेरी गलतियों का क्षमा करना। Same thing here God said. वही चीज यहाँ पर कहा गया है। The people of Israel, जो इजराइल के लोगों को turn to back. तब वापस आते हैं, turn to back, come to me. वापस अपना मन फिरा के प्रभु की ओर आओ, प्रभु की ओर आना। Then I will accept and you will must live according to my one. हम लोगों को परमेश्वर के ही अनुसार जीना चाहिए। And someone read the chapter 2 verse 9. कोई आप में से कोई पढ़ना चैप्टर 2 के 9। So I make you despise and abase before all the people, insolence as you do keep my ways, but show partiality in your instruction. इसलिए मैं भी तुमसे सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरना व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। And they are doing their own. वो अपने ही अनुसार कर रहे हैं चीजें। That's why इसी कारण they lost their respect. इसी कारण उन्होंने अपनी इज्जत को गवा दिया। Because many people knows the people of Israel is living according to will of God. क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता था कि इजराइल के लोग परमेश्वर की इच्छा के जरिए जी रहे हैं। And the people of Israel, people of Israel, God is a big. कि इजराइल के लोगों परमेश्वर से बड़ा तो इजराइल के लोग हैं। But also the people of Israel is not doing according to God's word. और फिर भी परमेश्वर के वचनों के द्वारा नहीं कर रहे हैं इजराइल के चीज लोग। That's why God want to remind them, please turn to back me. इसी कारण परमेश्वर उनको ये याद दिलाना चाहता है कि वापस मन फिराओ। And today, और फिर आज what can we learn from the book of Malachi? हम क्या पढ़ सकते हैं मलाकी की पुस्तक के द्वारा? And how to apply in our life? हमारे दिल के जरिए जिंदगी पे God said we must remember that. परमेश्वर के हमें We must हमेशा remember the love of God. हमें हमेशा परमेश्वर के प्यार को याद रखना चाहिए। Even we can see about the people of Israel. हम देख सकते हैं कि इजराइल के लोगों को They are doubting the love of God. वो परमेश्वर के प्यार को प्रेम को सब कर रहे हैं, परंतु God said, पर परमेश्वर ने कहा I have loved you. मैंने तुमसे प्रेम किया है। Today also तो आज भी we can see the John 13 verse 16.
हम देख सकते हैं जॉन 13 के 16 पर या 19 God loved us whole world. परमेश्वर ने हम सारे दुनिया से ज्यादा प्रेम किया। And when we doubt about God, जब हमने परमेश्वर के प्रेम को संदेह किया but God will never forget us. पर तब हमें परमेश्वर कभी माफ नहीं करेगा। God will never forget us और परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेगा, because His love is we cannot imagine. कि हम सोच भी नहीं सकते कि उसका प्रेम कितना महान है। That's why if God want to destroy them, they are destroyed, but they loved them. परमेश्वर चाहता तो परमेश्वर उनको तबाह कर सकता था, परंतु परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया। When we came to church, जब हम चर्च पे आते हैं, and we worship should came from our bottom of heart. जब हम चर्च पे आते हैं, जो महिमा आराधना होती है वो हमारे दिल से आना चाहिए। We should believe our bottom of heart. हमें भरोसा करना चाहिए हमारे दिल के गहराई से। We must worship bottom of heart. हमारे दिल के गहराई से हमें प्रसन्न स्तुति करना चाहिए। Then God will accept. तब परमेश्वर स्वीकारेगा, Otherwise He will never accept. परंतु अगर ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारी जो आराधना है उसको कभी नहीं स्वीकारेगा। We can see the people of Israel. और हम देख सकते हैं इजराइल के लोगों को, they are worshipping, they are bringing the sacrifice, but God will never accept. वो प्रशंसा कर रहे, स्तुति कर रहे हैं और चढ़ावा ला रहे हैं, परंतु परमेश्वर कभी भी उसको नहीं स्वीकारेगा। Because they are worshipping, they are bringing sacrifice according to their own. वो जो ला रहे हैं वो अपने ही मन मर्जी से ला रहे हैं। Same thing happen in our life. यही सेम चीज जो होता है वो हमारी जिंदगी पर भी होता है। We made many rules of our church. हमने बहुत सारे रूल से जो बनाया है और नियम बनाए हमारे चर्च के लिए। We are obey the rule of church. हम चर्च के रूल को मानते हैं, but we are not following word of God. परंतु हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। Now what is the purpose? तो क्या फायदा है इस चीज का, क्या उद्देश्य है? That's why we need the obey word of God. इसी कारण हम सभी को परमेश्वर के वचनों को मानना जरूरी है। If we want to go to heaven and we worship like this, अगर हम सभी को स्वर्ग जाना है और परमेश्वर की स्तुति करना है, महिमा करना, प्रशंसा करना है, and already Paul said to the people of Galatians, पौल ने कहा है गैलेतियंस के लोगों को, the many people worshiping God. बहुत सारे लोग परमेश्वर को आराधना करते हैं। There are many people believing in God. बहुत सारे लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। There are many people praying to God. बहुत सारे लोग परमेश्वर पर प्रार्थना करते हैं। But everyone is not coming to heaven. पर सारे लोग नहीं है जो स्वर्ग पर आएंगे। But Paul says, पर पौलुस कहता है, those who worshiping his bottom of heart, then they will go into the heaven. जो अपने दिल के गहराई से आराधना करेगा वही है जो स्वर्ग पर जाएगा। And we can see we will learn from the priest of Israel. अब हम देखेंगे इजराइल के जो पंडित है उनके द्वारा, they are not able to teach a right way. वो लोग सही तरीके से सिखाने के योग्य नहीं थे। They are able to preach our word. पर वो सकते थे कि परमेश्वर के वचनों को बोले, they are able to preach word of God. सकते थे, कर पाते थे, but they forget. पर वो भूल गए because they are doing according to their own. क्योंकि वो अपने ही इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। We learn from this passage. हम इस शब्द से ये पढ़ते हैं कि we must teach and we must preach and everything right way. जो भी हम प्रचार करते हैं, जो भी हम सिखाते हैं, वो सब हमें सही तरीके से करना चाहिए। Otherwise God will punish us. वरना परमेश्वर हमें सजा देगा। We can see this book.
वो हम देखते हैं इस किताब पर। I am not saying to you, मैं तुमसे नहीं कह रहा, but God said to you, पर परमेश्वर कह रहा है, you must preach and you must teach and everything in the right way according to will of God. हमें जो भी प्रचार करते हैं, जो भी सिखाते हैं, उन सारी चीजों को एक सही तरीके से और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना चाहिए। We can see the Malachi chapter 2 verse 10 to 16. हम देखते हैं मलाकी चैप्टर 2 के 10 से लेकर 16 पर There are many people managing the idol worshipper. बहुत सारे लोग शादी कर रहे थे जो मूर्ति पूजा करते हैं उनसे, They are worshipping the idol worshipper wives. और जो वो लोग वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे उनसे, जो मूर्ति पूजा करते थे उनकी पत्नियों से। But the people of Israel, परंतु भी इजराइल के लोगों ने many men, they are marrying with idol worshipper. वो जो मूर्ति पूजा करते हैं उनसे विवाह कर रहे थे, And after that they partiality through the divorce. They are divorced. उसके बाद उनको ये परिणाम देखना पड़ा कि डिवोर्स होना लग गया, तलाक होना लग गया। God said to God had also the divorce. परमेश्वर तलाक से भी नफरत करता है। Because already God told to the when God gave a commandment. जब परमेश्वर ने वाचा दिया था उसने पहले ही कहा है। That's why God said and we should not do like this. कि परमेश्वर ने इसी कारण कहा है कि हमें ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए, Otherwise God will give a punishment. वरना परमेश्वर हमें सजा देगा। If we will marry someone, अगर हम किसी से शादी करते हैं then we don't do like this. तो हमें इस तरह की चीजें नहीं करना चाहिए। They are the people of Israel that divorced the many wives and after that marriage and after their divorce and after marriage and divorce like this thing. इजराइल के लोगों की तरह शादी करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं उनसे शादी करते हैं, फिर डिवोर्स करते हैं, फिर शादी करते हैं, डिवोर्स, ऐसा चीज हमें नहीं करना चाहिए। But God is not happy. परंतु परमेश्वर हैप्पी, खुश नहीं है इस चीजों से। They are forget the covenant value. परमेश्वर के वाचा को वो भूल चुके हैं And they are forget the between relationship with God and people. वो परमेश्वर के साथ के संबंध को भूल गए हैं। And we will see when we the breaking trust in relationship with God, जब हम परमेश्वर से विश्वास तोड़ते हैं then we must pray to God. तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, God please forgive my mistakes. हमारी गलतियों का परमेश्वर क्षमा देना। God please forgive my mistakes. हमारी गलतियों से परमेश्वर क्षमा देना। And God will definitely forget our mistakes. अगर हम माफी मांगे तो परमेश्वर जरूर हमें माफ करेगा। And we must live according to the will of God. हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की जरूरत है। And after that we will learn from the Malachi chapter 2 verse 16. अब हम देखेंगे मलाकी चैप्टर 2 के 16 पर। Also same thing here God had to divorce. यहाँ पर भी डिवोर्स के बारे में ही Those who divorce God has them. जो डिवोर्स करते हैं परमेश्वर उनसे नफरत करता है। And said this thing is not just a legal matter but the spiritual. ये सिर्फ एक कानूनी तरीके की बातें नहीं है, पर जो आत्मिक रूप से है ये उसी बात पर है। There are many people crying and while worshiping to God. बहुत सारे लोग हैं जो रो रहे हैं, जो रोते हैं प्रार्थना करते वक्त, परमेश्वर से आराधना करते वक्त, but they are doing something wrong in the according to worldly things. पर वो कुछ गलत कर रहे होते हैं उनके जीवन पर। We should not do like this. हमें इस सारी चीजों को इस तरह से चीजों को नहीं करना चाहिए। Because God has like these things. Because God has these things. क्योंकि परमेश्वर नफरत करता है इन सारी चीजों से। That's why we must live according to word of God.
इसी कारण हम सभी को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की जरूरत है। If you want to go into heaven, and you can do like this, go what God says. अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है तो तुम्हें जो परमेश्वर कहता है वो कहने की जरूरत है, And live according to will of God. और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की जरूरत है। And main things we learn from the book of Malachi. और जो मेन चीजें हम इस किताब से सीख सकते हैं कि First one, पहला चीज God's love is steadfast. परमेश्वर Steadfast is more than many loves us. परमेश्वर पिता जो है हमें बहुत ज्यादा प्रेम करता है, सबसे ज्यादा प्रेम करता है। Even when we are unfaithful, जब हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते, but God loves us. पर परमेश्वर हमें प्यार करता है। And the second one, और सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, worship must be whole heart. हमें वर्शिप, हमें आराधना अपने पूरे दिल से करना चाहिए, Not hypocrisy and lazy. बस दिखावे के लिए नहीं और आलसीपन में नहीं। We must worship from our bottom of heart. हमें अपने दिल के गहराई से स्तुति आराधना करना चाहिए। And after that we learn. फिर हम देखते हैं Leaders are uncomfortable for how they influencing spiritually. जो लीडर होते हैं वो बहुत सारे हैं जो they don't know what happening in our life, what happening in our church. लीडर जो होते हैं वो नहीं जानते कि हमारे चर्च पे क्या हो गया है, क्या हो रहा है, वो नहीं जानते। But when we go to the preach, and we must think, if we are leading the people, then we must think they are the people of the church member are growing in spiritually or not. जब हम चर्च पे जाते हैं तो हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि चर्च के लोग हैं जो आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं कि नहीं। And honest, whether we God or others, or must honor. वाचा ये है कि कुछ भी हो जाए पर हमें परमेश्वर की इज्जत रेस्पेक्ट करने की बहुत जरूरी है। हमें उसकी इज्जत और रेस्पेक्ट करना ही चाहिए, Because our God is respectful. क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता बहुत इज्जत के योग्य है। And because our God is great King. क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता एक महान राजा है। If we will become a reverence, अगर हम रेवरेंस बनेंगे, if we will become a pastors, अगर हम पास्टर बनेंगे, if we will become a teachers, अगर हम टीचर बनेंगे, if we will become a prophets, अगर हम भविष्यवक्ता बनेंगे, for परमेश्वर God should shape every area of life. परमेश्वर हमारी जिंदगी का हर एक जो हिस्सा है उसको एक आकार देगा, उसको एक रूप देगा। हमारे जिंदगी का हर एक हिस्सा को If we are living according to will of God, then God will protect us. अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे तो परमेश्वर हमें संभाले रखेगा, बचाए रखेगा। We can see the city of Israel. हम देख सकते हैं इजराइल के एक राज्य को, We will see about the country of Israel. हम देखेंगे एक इजराइल देश के बारे में। Now many people came to attack the people of Israel. बहुत सारे लोग हैं जो इजराइल पर हमला करने के लिए आए हैं, but this thing is not fulfilled. पर ये चीज जो है वो पूरा नहीं हुआ गया। Because here what we read here, कि हमने यहाँ पढ़ा है God loved them. क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, God protected them. क्योंकि परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। That's why we can see the chapter 60, Psalm 63 verse, I think I forget, but the 63 Psalms, David says, your love is steadfast, your love is better than my life. हम साम्स के 63 के किसी अध्याय पे देखते हैं कि डेविड कहता है कि आपका प्यार जो परमेश्वर पिता का प्यार है वो मेरे जिंदगी से भी महान है। If I destroy, I never mind. अगर मैं खत्म हो जाता हूँ तो मैं कुछ चिंता नहीं करूँगा, because I need the presence of God. क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। This is enough.
ये वही मेरे लिए काफी है। That's why we must, when we become a pastor, then don't make a new rule, but we must also God make a rule for us, and we will. That's why God said then they will be doing according to my will. जब हम पास्टर बनेंगे या कुछ भी बनेंगे तो हमें नए नए जो नियम है वो सारे बनाने की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर ने नियम बना के ही रखा है हमें उसको फॉलो करके उसको मानकर चलना चाहिए और उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। And we don't forget और हमें ये भूलना नहीं चाहिए love of God. परमेश्वर के प्रेम को, God is always love us. क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमसे प्रेम करता है। If we are doing something wrong, अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं then he will fall down. तो वो गिरेगा, Then he will fall down us. वो गिरेगा हमारे, वो नीचे गिरा जाएगा, वो हमको नीचे गिराएगा, वो हमें नीचे गिराएगा परमेश्वर। But after that he will say you are my son. फिर उसी के बाद अगर वो हमें गिराएगा परंतु फिर भी वो कहेगा कि तुम मेरे पुत्र हो, And he will make us a good life. फिर वो हमारी जिंदगी को एक अच्छा जिंदगी बनाएगा। वो हमें गिराएगा परंतु फिर भी उसके बाद हमारी एक जिंदगी को अच्छा जिंदगी बनाएगा। And when we will become a leaders in another organization, जब हम किसी भी जो संस्था है उसके लीडर्स बनेंगे, we must respond and we must become a responsible man. हमें एक जो रिस्पॉन्सिबल जो अच्छे तरीके से करने वाला इंसान बनना चाहिए। Then God is happy. तब परमेश्वर खुश होगा हमसे। We must remember हमें ये याद रखने की जरूरी है God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। Even we will doubt. हमें शक नहीं करना चाहिए। Even we doubt. अगर हम परमेश्वर पर शक करते हैं But God loves us. फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। And we are doing something wrong. हम जब कुछ गलत करते हैं But God loves us. तो फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। Thus says the Lord. ये परमेश्वर कहता है you must remember me. तुम्हें मुझे याद रखने की जरूरत है। You must worship me. तुम लोगों को मेरी स्तुति आराधना करने की जरूरत है। You don't do according to your will. तुम चीजें अपने तरीके से मत करो परंतु मेरे इच्छा के अनुसार जो भी करते हो मेरे इच्छा के अनुसार करना। And we can see the people of Israel. तो फिर हम देखते हैं इजराइल के लोगों को, they are promising to with God. वो परमेश्वर से एक वादा करते हैं we will bring a good things. तो हम एक अच्छी चीज लेकर आएंगे for sacrifice. चढ़ाने के लिए। But when they came to the altar, जब वो अल्टार पर आते हैं they brought unclean animals. तो वो जो अशुद्ध जानवर है उनको लेकर आते हैं। That's why God don't do like this. इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि ऐसा मत करो। I said many years ago. मैंने बहुत साल पहले ये कह चुका हूँ about this thing. इन चीजों के बारे में। Don't bring unclean animals. अशुद्ध जानवरों को लेकर मत आओ। That's why now we are not going to for bringing the animal, but we are something doing here. अभी भी आज की जिंदगी में भी हम एनिमल लेने तो नहीं जाते, फिर भी कुछ उसी तरीके से करते हैं। God want to know us. They are worshiping trustfully and bottom of heart. परमेश्वर हमसे जानना चाहता है कि हम लोग परमेश्वर को आराधना है जो अपने दिल से करते हैं कि नहीं। Whether we are pastor, अगर हम पास्टर भी हो, whether we are teacher, अगर हम टीचर भी हो, whether we are believer, अगर हम एक विश्वास करने वाले भी हो, और influence matter, हमारा प्रभाव मायने रखता है। That's why then means how to live.
मतलब कैसे जीना चाहिए। We are living according to God's word, हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा जीना चाहिए, not according to our own. हमें अपने तरीके से नहीं जीना चाहिए। That's why same thing God remind the people of Israel. इस कारण से वही चीज परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को याद दिलाया। If you are living a right way, अगर तुम सही रास्ते पर जी रहे हो, if you are preaching a right way, अगर तुम प्रचार सही रास्ते से कर रहे हो, if you are praying to right way, अगर तुम प्रार्थना सही तरीके से कर रहे हो, if you are worshiping to right way, अगर तुम आराधना सही तरीके से कर रहे हो, then God will help you. तब परमेश्वर खुश होगा। Otherwise God will never help you. परंतु परमेश्वर खुश नहीं होगा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो। If God will never help you, then one day we will thinking why we live according to my own. अगर परमेश्वर खुश नहीं होगा तो एक दिन हम ये जरूर सोचेंगे कि क्यों मैंने अपने मर्जी से जिया। And that time we don't have time. और उस वक्त हमारे पास समय नहीं बचा होगा। Because coming the Lord is coming. जब परमेश्वर आएगा तो The Jesus Christ is coming soon. यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। That's why one prophecy we can see the Malachi. हम एक प्रोफेसी एक भविष्यवाणी देखते हैं मलाकी पर। And this says this prophecy. ये भविष्यवाणी ये कहता है कि one person came to before the Lord. एक इंसान है जो परमेश्वर से पहले आएगा for the preparing the way of the Lord. परमेश्वर के लिए रास्ता बनाने के लिए एक इंसान है जो उससे पहले आएगा। And who is this? कौन है वो? Do you know? क्या आपको पता है? John the Baptist. जॉन द बैप्टिस्ट। But we are not clear here. We are not find it clear. पर हमें अच्छी तरीके से पता नहीं चला है। But those who believe in God, पर जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, those who believe in God, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, they are saying, वो कहते हैं this prophecy about the John the Baptist. ये भविष्यवाणी जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में है। If we will go to the for preaching and teach and someone read the Bible, don't know about the God, and they cannot understand. जब हम प्रीचिंग करेंगे और बाइबल के बारे में ही कुछ पता नहीं होगा तो जिसको समझा रहे उन्हें पता नहीं, वो नहीं समझ पाएंगे। But we cannot find in this book this is John the Baptist. हम इस किताब में समझ जान पाते हैं कि ये बोला गया है जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में। But many scholar and those who study about God, many lot of they says this is John the Baptist. बहुत सारे जो ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने प्रभु के बारे में पढ़ा है, वो कहते हैं कि ये जॉन द बैप्टिस्ट के लिए कहा गया है। And this prophecy is fulfilled. और ये जो भविष्यवाणी है ये हो चुका है। Then what do we learn from whole sermon this? और हम ये सारे जो सरमन है इससे क्या जान सकते हैं? If we are doing something wrong, अगर हम कुछ गलत करते हैं, we must correct our mistakes. हमें अपने गलतियों को सही करना चाहिए। If you are worshiping to God wrong way, अगर हम परमेश्वर की आराधना गलत तरीके से कर रहे हैं, we must correct our worship meeting. और हमें अपने जो वर्शिप करने का तरीका है उसे सही करना चाहिए। If we are preaching wrong way, अगर हम परमेश्वर के प्रचार गलत तरीके से कर रहे हैं, we correct. We need a corrector. हमें सही करने की जरूरत है। And we must study deeply. हमें गहराई से पढ़ने की जरूरत है। Then we can understand the right meaning. तब हमें पता चलेगा कि वो क्या कहना चाहता है, एक सही मतलब उस चीज का। If we are not knowing the right meaning and we will preach, someone is not came and blame us, but God will scold us. जब हम अच्छी तरीके से नहीं जानकर प्रचार करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कोई आकर हमें डांटेगा, पर ऐसा होगा कि परमेश्वर जो हमें देख रहा है वो हमें डांटेगा।
That's why God said, "Turn to back इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि मन फिराओ and come to me कम मेरे पास आओ वापस and correct your mistakes." अपनी गलतियों को सुधारो। Today, and I want to stop here. This अब sermon. मैं इस जो सरमन है मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। And don't forget the God's love. और आप सब भी परमेश्वर के प्रेम को मत भूलना। Don't doubt the love of God. परमेश्वर के प्रेम पर आप शक मत करना। And you must do according to the will of God. आप सभी को परमेश्वर के अनुसार ही और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की जरूरत है। We must preach according to what this verse says. हमें प्रचार जो ये वचन कहते हैं उनके अनुसार हमें प्रचार करने की जरूरत है। We don't want to add the worldly things in the Bible. हमें जो वचनों में लिखा है उसमें बाहर की चीजों को ढालने की जरूरत नहीं है। आप खुद बनाकर बाहर की चीजों पर उस पर ढाल के नहीं, उसी वचन को कहने की जरूरत है। And if we are promising with God, and we must fulfill. अगर हम परमेश्वर से कुछ वादा करते हैं, कुछ वाचा देते हैं, तो हमें उस वाचा को पूरा करने की जरूरत है। And then God will help you. तभी परमेश्वर पिता हमसे खुश होगा। Otherwise, we will not fulfill our promise with God. Then God will rebuke us. अगर हम परमेश्वर पिता से जो वादा किया है हमने, जो वादा किया हम अगर उसे पूरा नहीं करेंगे तो परमेश्वर पिता हमें अस्वीकार करेगा। That's why we are living according to the word of God and according to covenant of God and according to the word of God. इसी कारण से हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वाचा के अनुसार और परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीने की जरूरत है। And you don't think these things are said the people of Israel. ये मत सोचना कि ये चीजें सिर्फ इजराइल के लोगों के लिए है। But today God saying to us, क्योंकि परमेश्वर ने आज पर हमसे ये कहा है, I have loved you. कि मैंने तुमसे प्रेम किया है और I am always loves you. और मैं तुमसे हमेशा प्रेम करता हूँ। You don't forget. और कभी मत भूलना। And we need to correct our mistakes. और हमें अपनी गलतियों को सुधारने की जरूरत है। If we did not correct our mistake, and otherwise we will never go to in heaven. अगर हम अपनी गलतियों को कभी ना सुधारे तो हम जिंदगी में हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। Only for God want to see us if we are living, if they are living according to my own or their own. परमेश्वर हमसे ये देखना चाहता है कि ये लोग जो है वो मेरे इच्छा के अनुसार जी रहा है ना अपने ही इच्छा के अनुसार जी रहा है। These things God want to see. ये सारे चीजें बोलना चाहता है। And God want to see one thing. परमेश्वर हमसे एक चीज देखना चाहता है, They are living according to my word or not. कि ये लोग जो मेरे वचन के द्वारा जी रहे हैं कि नहीं। That's why we need to live according to will of God. इसी कारण से हमें परमेश्वर पिता के अनुसार जीने की जरूरत है। And I hope this message is clear. मैं आशा करता हूँ कि जो वचन है ये आप सभी को समझ आया होगा। And if I made a mistake, and forgive me. अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मुझे माफ कर देना। Because this preaching is my first preaching. क्योंकि ये प्रीचिंग मेरा पहला प्रीचिंग है in English language. इंग्लिश भाषा पर। That's why I don't know the English language. मैं इतनी ज्यादा नहीं जानता हूँ इंग्लिश। But very few I know. मैं इंग्लिश थोड़ा ही जानता हूँ। That's why I don't want to preach in English language. मैं इसी कारण से इंग्लिश पर प्रीच करना नहीं चाहता था। But our teacher said to is you must preach in English language. इसी कारण तो पर हम मेरे टीचर जिंसन सर ने कहा कि तुम्हें इंग्लिश पर ही प्रचार करना होगा। But I am thinking he is a simple saying. मैं ये सोचता हूँ कि he is a simple saying. कि मैं सिंपली कह रहा हूँ। Then I prepared the sermon.
when I am preparing the sermon, जब मैंने सरमन को बनाया, प्रिपेयर किया इसकी, then I made a few sermon from the book of Galatia. मैंने थोड़ा सा जो सरमन है गलतियन की किताब से बनाया था, But I prepared the few sermon, पर थोड़ा ही था, and my mind says, sir said you don't preach the New Testament. तो मेरे दिमाग ने कहा कि नए नियम पर जाकर ढूंढना, कुछ ढूंढना, You don't preach in the New Testament. हो तुम ना पूरा नए नियम पर जाके प्रीच मत करना, But you and everyone Jesus or everyone said to us, you must preach in Old Testament. सबने हमसे यही कहा है कि हमको ओल्ड टेस्टामेंट से जो है वचनों को प्रचार करना चाहिए। Then I am very confused कि मैं बहुत कंफ्यूज था, because many things I don't know on the Old Testament. कि मुझे तो बहुत सारी चीजें तो पुराने नियम पर आते ही नहीं। Then I am thinking about the sermon and thinking 1 hour run away. फिर मैं बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने लगा। I am thinking of 1 hour. फिर मैं 1 घंटे तक बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने लगा। And 1 hour run away. 1 घंटा चला गया। और फिर उसके बाद 1 घंटा बीत गया। Then I remember one day I prepared the sermon from the book of Malachi. फिर मुझे एक याद आया कि मैंने मलाकी के किताब से सरमन की तैयारी किया गया था। And I prepared a few things. पर मैंने थोड़ा ही चीजें तैयारी किया गया था। But after then I understood. Then I am reading the book of Malachi. फिर मुझे उसके बाद समझ आया, उसके बाद मैंने मलाकी के किताब को पढ़ना शुरू किया। Because I don't know about the Malachi, book of Malachi. क्योंकि मैं मलाकी के किताब के बारे में नहीं जानता था। First I read the book of Malachi, but I didn't understand anything. तो पहले मैंने मलाकी के किताब को पढ़ा पर मुझे समझ नहीं आया। And after that 2 times I read. फिर मैंने 2 बार पढ़ा, 3 times I read. 3 टाइम्स हो गया। Then I can understand, I can preach in this book. फिर मुझे समझ आया कि नहीं, मैं इससे प्रचार कर सकता हूँ। Then I am studying and then I am thinking about how to speak in English. फिर मैं सोच रहा था कि अब इंग्लिश में कैसे बोलूँ। But I want to thank to God because He gave me. कि मैं परमेश्वर का शुक्रिया करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। And I want to stop here because time is run away. और मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, हमारा समय खत्म हो गया है। And don't forget God's love. तो परमेश्वर के प्रेम को मत भूलना। Remember that. ये याद रखना। God says this is. ये परमेश्वर ने कहा है। Okay. Shall we pray?